Good morning, student. Today we will do chapter number 10, gravitation. So question number 12 is gravitational force on the surface of the moon is only 1/6. Given that जो gravitation force है on the surface of the moon is only 1/6 as stronger as gravitation force on the earth. So we can write कि जो force होता है moon पर वो किसके इक्वल होता है 1/6 of the force on the earth. So we can write in term of weight also. Okay. So यहाँ पर हमने इसको weight की term में write कर दिया है. Next, what is the weight in newtons of a 10 kg object? So here mass is given. So mass of an object is equal to 10 kg. So on the moon and on the earth. So we have to find the weight of the object on the moon and on the earth. As we know that weight is equal to mass multiply g value. What is g? G is the acceleration due to gravity. So जो हमारा mass जो हमारा weight equal होता है that is equal to the m multiply g, mass of the object multiply acceleration due to gravity. So अगर हम weight निकालते कहाँ पर अर्थ पर, then mass of the object is given 10 kg multiply what is the value of g on the earth. So as we know that the g value is on the earth is 9.8 meter per second square. So now put the value 9.8. So 10 9.8 10 so cut 98 Newton. So it is the weight on the earth. Now use this equation. As we know that weight on moon is equal to 1/6 on the weight of the earth. So as we know that how we can find out the weight on the moon 1/6, we know that the weight of that object on the earth is 9.8 Newton. So put this value 9.8. So now cut this. This is equal to 16.3 Newton. So this is the answer. Now second question. What is second question? A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड. कोई भी बॉल है जो हमने कैसे थ्रो की है, ऊपर की तरफ थ्रो की है और किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी इज गिवन 49 मीटर पर सेकेंड. सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइसेस. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट कि जो बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की है. सेकेंड, द टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कि उसने कितना टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस रिटर्न यहाँ तक आने में. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? इन दिस क्वेश्चन u value is given because it is the initial velocity. So u value is given 49 meter per second. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v? अगर कोई भी बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर, डैट मीन्स बॉल नीचे आना कब स्टार्ट हो जाएगी? जब बॉल की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसके बाद जो बॉल है नीचे आना स्टार्ट करेगी. डैट मीन्स एट मैक्सिमम हाइट v वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. सो 0 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर दैट g, as we know that it is when the any ball is thrown upward direction. So in upward direction g value is negative because यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे अर्थ की ग्रेविटी की तरफ होती है सो g की वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव होती है. अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो g की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे. सो एज वी नो डैट द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन. Okay, so the maximum height to which it rises. So it is the distance covered by an object. So suppose it is s. Okay.
let S be the height achieved by ball. Okay, so suppose it is S distance. So how can we find out the value of S? As we know that there are three equations of motion. So how can we find out? We can use this equation also, 2as is equal to v square minus u square, because we having the value of v, u, g also. So we can easily find out. So put all the value in this equation. So 2 multiply g is minus 9.8 multiply s, v value is 0 square minus 49 square. So s is given minus, we can write it 49 multiply 49 and divide minus 2 multiply 9.8. So cut minus to minus. So now 49 multiply 49, 2 multiply 9.8, so cut and 10 here. Okay, so 5. Okay, when we solve this, our value will come 122.5 meter. So it is the S value. So it is the S value. So इतने हाइट पर जो हमारी बॉल है उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है. So S is equal to 122.5 meter. Now the second part is the total time it's take to return to the surface of the earth. कि अब वो गई और वापस फिर सरफेस पर आई तो उसने कितना टाइम लिया. So now let's okay, suppose let t be the time taken by the ball to reach height 122.5 मीटर. ओके, सो हमने अज्यूम कर लिया कि जो बॉल है वो हमारे जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है 122.5 मीटर. सो हमने सपोज कर लिया कि वो कितने के अंदर कवर किया, टाइम टी के अंदर. सो नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी? As we know that according to the equation of motion, v is equal to u plus gt. Okay, so we having the value of we having the value of v and u all. So put all value. V value is 0. So it is 0 and u value given 49 plus. Now we are taking upward direction. That's why g value is minus 9.8. And t we have to find out. So okay, so now minus 49 minus 9.8 t. So cut minus to minus, t is equal to 49 9.8. So cut this this point and 0. Okay, so 49098. So when we cut it, 5 seconds will come. ओके, सो ये जो टाइम है जस्ट ये ऊपर जाने के लिए है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट टाइम. सो हमें पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा सेम टाइम उतना ही नीचे आने में लगता है. सो टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. दैट मीन जितना ऊपर आने में लगा उतना ही बॉल को नीचे आने में लगेगा. सो total time will be equal to 5 plus 5, that is 10 seconds. Next question is question number 14. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. So there is one tower
ओके, सो सपोज इट इज r. सो यहाँ से क्या किया है, कितना इसकी हाइट कितनी गिवन है, डेट इज 19.6 मीटर. कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. सो हमने यहाँ से क्या एक स्टोन को रिलीज़ किया है इस हाइट से. स्टोन यहाँ से क्या हुआ है, रिलीज हुआ, डैट मीन्स नीचे की तरफ आया है. सो यहाँ पर जब भी हम स्टोन को रिलीज़ कर रहे हैं तो इन द स्टार्टिंग स्टोन आर इन रेस्ट पोजिशन. कहाँ पर है, रेस्ट पोजिशन में. डेट्स वाई द वैल्यू ऑफ यू विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. सो इस केस में जो हमारी यू की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. बिकॉज स्टोन हमने रिलीज़ किया तो स्टार्टिंग में हमने स्टोन को होल्ड करके रखा हुआ था, तो वहाँ पर वैल्यू क्या थी, वो रेस्ट में था. सो इसलिए वैल्यू क्या थी हमारी, 0 के इक्वल. उसके पास हाइट गिवन है, डैट मीन्स उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पर क्या गिवन है हमारा, डिस्टेंस. सो एस वैल्यू इज गिवन 19.6 मीटर. आफ्टर डैट जी वैल्यू इज फिक्स्ड. अब यहाँ पर स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटी के टूवर्ड है. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू, डैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट the final velocity, that is v. So how can we find out v? We can use 2gs is equal to v square minus u square. So v having all the values, so we can put all value in this equation and we can easily find the value of v. So put all the values. So 2 multiply g 9.8, s is equal to 19.6 is equal to v square minus u square is given 0. Okay, now solve this. 10 okay, so when we multiply it, so multiply 2 multiply 98 is equal to 196 and 10 multiply 10 is equal to v square. So we can write this 196 divided by 10 square. So v square, so cut this. So v is equal to 196 divided by 10. So we can write 19.6 meter per second. So it is the value of v. So next question is question 15th. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. कोई भी स्टोन है वो कहाँ पर थ्रो किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और किस वेलोसिटी से, डैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, u इज गिवन 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर हमें g की वैल्यू कितनी लेनी है, 10. सो g इज 10 बट इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई वी विल टेक इट नेगेटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन. सो वह यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम किया था कि अगर हमें मैक्सिमम हाइट अटेन करनी हो, सो मैक्सिमम हाइट वहाँ पर होगी जहाँ पर v क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी. बिकॉज जब v 0 हो जाएगी उसके बाद जो स्टोन है वो नीचे आना दोबारा स्टार्ट कर देगा. सो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. सो फर्स्टली find out the value of distance. What is the distance here? So we have to find out the value of s. So as we know that 2gs is equal to v square minus u square. So now put all the value.
2 multiply minus 10 s is equal to what is the value of v? 0 minus 40 square. So s is equal to minus 40 multiply 40 and minus 2 multiply 10. So cut this minus. So 40 multiply 40, 2 multiply 10. So it is 80 मीटर. सो जो भी हमारा यहाँ पर ये डिस्टेंस है, सो ये डिस्टेंस हमारा कितना है? 80 मीटर. So now what is the displacement? So it is the distance. Now what is total distance? So यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा 80 हुआ. So यहाँ पर पूछा है कि total distance covered by the stone. So stone एक बार ऊपर गया होगा, फिर एक बार नीचे आया होगा. So 80 मीटर उसने ऊपर कवर किए, फिर 80 मीटर उसने दोबारा फिर कवर किए. So what is the total distance? Total distance is equal to 80 plus 80, that is 160 meter. So one answer is this, and second is the what is the net displacement. So net displacement during its upward and डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू, जैसे हम ऊपर गए थे सो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी वो हमने पॉजिटिव ली थी. सो यहाँ पर अब दोबारा नीचे आए तो डायरेक्शन चेंज हो गई. एज वी नो डैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर डायरेक्शन चेंज होती है सो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. सो एक डायरेक्शन में हम इसको नेगेटिव ले लिया. सो इट इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is question number 16. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth, that means mass of the earth is given 6 into 10 raised to power 24 kg, and of the sun, mass of the sun is given 2 into 10 raised to power 30 kg. So the average distance between the two is, that means distance is given, that's why the radius is given, that is 1.5 into 10 raised to power 11 meter. So we have to calculate the force of gravitation. As we know that F is equal to G multiply gravitation multiply mass of one object multiply mass of second object divided by R square or D square. Okay, so now put all the values. As we know that G value is also fixed, so G value is 6.7 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square kg minus 2. So put all the value. 6.7 into 10 raised to power 11 multiply 2 multiply 10 raised to power 30, 6 multiply 10 raised to power 24. What is the R value? That is 1.5 multiply 10 raised to power 11. That is the square. Okay, so firstly solve all the powers. So 6.7 multiply, so here the power is okay, that is 2 multiply 6, so we write all the power here, and 1.5 again 1.5 multiply 10 raised to power, that is 22. 11 plus 11 22. So firstly we will solve all the powers.
So 24, when we cut this power, so only 2 powers will left. So यहाँ पर हमारी जस्ट ओनली 2 पावर्स रह गई. ओके, सो यहाँ पर जब 30 में से हमारे 11 माइनस हुए, सो यहाँ पर हमारे 19 प्लस 2 डेट इज़ 21. 6.7 इंटू 2 6, 10⁻21, 1.5 1.5. But cut 1.1 and cut this, so 67 multiply 2 multiply 6, so now power is 1022, so 15 multiply 15. Now you can easily solve this. So when we solve it, so it is 3.57 10⁻22 Newton. So it is the answer. Next question is, a stone is allowed to fall from top of a tower 100 मीटर हाइट. सो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक स्टोन को क्या किया, फॉल किया है. कहाँ से, एक टावर से, जिसकी हाइट कितनी है 100 मीटर. सो सपोज इट इज़ अ टावर एंड इट्स हाइट इज़ 100 मीटर. सो इट इज़ गिवन. हमने स्टोन को कहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल किया. सो इस केसेस में हमने स्टार्टिंग में जो स्टोन था वो कहाँ पर था, हमारे रेस्ट पोजीशन पर था. सो यहाँ पर यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हमारी 0 मीटर पर सेकेंड. So u is equal to 0 meter per second. And at the same height and the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. और उसी टाइम एक स्टोन को तो ऊपर से नीचे गिराया और एक स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका. तो जब ऊपर से नीचे गिराया वहाँ पर तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0. बट जब हमने नीचे से गिराया तब हमारी वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर 25. सो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट, कि कहाँ पर और कब जो दोनों स्टोन है. अब देखो, अगर एक स्टोन नीचे गिर रहा है और एक ऊपर जा रहा है तो कहीं पर तो वो आपस में मीट करेंगे. सो हमें वही बताना है कि कब और कैसे वो मीट करेंगे. सो फर्स्टली हम केसेस लेते हैं व्हेन द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टावर, कि जब वो ड्रॉप किया जाएगा. व्हेन स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टावर. ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी इन दैट केस इज 0. जी वैल्यू अब वो नीचे ड्रॉप हुआ है, सो इट इज़ पॉजिटिव एंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमने इस केसेस में सोचा, सपोज किया कि लेट्स जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द स्टोन, हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि अब उसने पूछा कि व्हेन और वेयर. हमने सोचा कि जो टी टाइम बाद लेट द टू स्टोन मीट आफ्टर अ टाइम टी. हमने सपोज कर लिया कि वो टी टाइम के बाद वो कहाँ पर मीट करेंगे, एक पॉइंट पर मीट करेंगे. और जो डिस्प्लेसमेंट है, सो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन टाइम टी फ्रॉम the top of the tower is S. सो हमने सोचा कि वो टी टाइम पर क्या करते हैं, मीट करते हैं. और हमने सोचा कि जब हमने किसी भी स्टोन को थ्रो किया, सो हमने वहाँ पर सोचा कि जब टाइम टी था तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, डेट इज़ एस. सो जो एस होगी, हाउ वी कैन फाइंड आउट एस, वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ टी हियर, बिकॉज हमें टी को फाइंड आउट करना है. सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. सो नाउ पुट
द वैल्यूज विच वी हैविंग, सो जो हमारे पास वैल्यू है एस इज इक्वल टू, वट इज़ द वैल्यू ऑफ यू, यू वैल्यू इज 0, टी नोट गिवन 1/2 9.8 एंड टी स्केयर, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, एंड व्हेन वी कट इट that is equal to 4.9, so 4.9 t square, so in first case s is equal to 4.9 t square, कि जो t टाइम में इसने हमारे फर्स्ट स्टोन ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, ये वाली, सो हमने इसको मान लिया फर्स्ट। नाउ सेकंड, when stone थ्रोन अपवर्ड, अब जो हमने दूसरा स्टोन था जिसको हमने अपवर्ड थ्रो किया था, सो उसकी एक हमें वेलोसिटी गिवन थी 25 मीटर पर सेकेंड, सो यहाँ पर हमें 25 मीटर गिवन है। सो यहाँ पर अब हमने ऊपर की तरफ थ्रू किया है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सपोज नाउ द डिस्प्लेसमेंट, इन दैट केस हमने जो सपोज किया, जो डिस्प्लेसमेंट थी या जो डिस्टेंस था वो हमारा एस डैश था। क्या था, एस डैश। हमने ऊपर से नीचे का एस लिया है और नीचे से ऊपर का हम एस डैश ले रहे हैं, सो इट इज़ एस डैश। सो वट इज़ द एस वैल्यू, सो यू सेम यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सो टी वैल्यू हमने दोनों में सेम अज्यूम की है। वट इज़ द वैल्यू ऑफ यू, 25 मल्टीप्लाई टी so it is equal to, as we know that s value is given 4.9 t square and s dash value is 25 t minus 4.9 t square. So as we know that the total distance is given 100 meter. So total कितना given है, 100. So s plus s dash will also equal to 100 meter. So दोनों का total भी किसके equal होगा, 100 के. So now put all the values because we have to find out the value of t. So 4.9 t square plus 25 t minus 4.9 t square is equal to 100 meter. So cut these values. So t is equal to 100 divided by 25. So time is 4 seconds. So this is the equation first and this is second equation. Now put the value t in equation first and in equation second, कि जो हमारा फर्स्ट स्टोन है वो कितने डिस्टेंस पर आए और सेकंड हमारे कितने डिस्टेंस तक। अब मैं यहाँ से ये पता लग गया है कि जो स्टोन है दोनों वो कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, 4 सेकंड के बाद। बट अब कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे, सो नाउ पुट वैल्यू। सो s इज इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर it is equal to 4.94 multiply 4 is equal to 78.4 meter. And when we put this value in second equation, then s dash is equal to 25 t minus 4.9 t square. Now put the value of t, 25 for 4.9 and multiply 4, so it is equal to 100, 78.4. So it is equal to 20.6 मीटर। सो जो हमारा s था सो वो कितना था हमारा 78, और जो हमारी h डैश थी यानी जो h डैश नीचे से थी वो थी हमारी 20.6 मीटर के डिस्टेंस पर। सो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस भी आ गया है और टाइम भी आ गया है। नाउ 18th क्वेश्चन इज a ball thrown up vertically return to the thrower after 6 सेकेंड। सो कोई भी हमने बॉल को ऊपर की तरफ क्या किया, थ्रो किया और दोबारा फिर वो नीचे आ गई है। सॉरी, a ball thrown up vertically return to the thrower after 6 सेकेंड, find the velocity with which it was thrown up।
सो एक तो हमें फाइंड आउट करनी है कि जो वेलोसिटी है उसको थ्रोन करने की कितनी है। सेकंड हमें बताना है द मैक्सिमम हाइट इट रीच। सो उसने जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी अटेन की है। सी हमने बताना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, कि वो 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या थी। सो एज वी नो डैट time of ascent is always equal to the time of descent। डैट मीन्स जो हमारा टाइम होता है असेंट, डैट मीन्स ऊपर जाने का और नीचे आने का, वो क्या होता है हमारा इक्वल होता है। सो द बॉल टेक, अब जो हमारी बॉल ने टोटल कितना टाइम लिया ऊपर और नीचे जाने में, टोटल कितने लिया उसने 6 सेकेंड। सो द बॉल टेक्स a total of 6 seconds for its upward and डाउनवर्ड जर्नी। सो उसने टोटल कितना टाइम लिया 6 सेकेंड। सो इसका मतलब कि अगर टोटल 6 लिया है तो 3 सेकेंड तो उसको ऊपर जाने में लगे होंगे नीचे से ऊपर, और 3 सेकेंड ही उसको नीचे आने में लगे होंगे। सो यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में 3 सेकेंड है और नीचे जाने में भी उसको कितनी है 3। तो जब उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की वहाँ पर जो हमारा क्या था टाइम है वहाँ पर 3 होगा। ओके। और सपोज अगर कोई बॉल ऊपर जा रही है, अगर मैं उसकी मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना हो, सो वो मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की होगी, जब उसकी v की वैल्यू 0 हो गई होगी तभी वो नीचे आना स्टार्ट करेगी। सो इन दिस केस v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। सो एट मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट पर जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। और यहाँ पर हमारा टाइम कितना गिवन था 3 सेकेंड। अब यहाँ पर g की वैल्यू क्या गई, अब बोला ऊपर की तरफ थ्रू हुई है, सो g विल बी नेगेटिव वैल्यू, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। So how can we find out v is equal to u plus gt? We can use this formula. So v value 0, u plus g value minus 9.8 and t value given 3. So you okay, when u is there, so this come in this side, u is equal to 9.8, इन दिस साइड इट इज़ नेगेटिव, सो इस तरफ आके ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज u। सो कट दिस इज, सो u वैल्यू विल कम 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हमारा जो u की वैल्यू है वो कितने आएंगे इतने। सो जो बॉल है वो ऊपर थ्रू की है किस वेलोसिटी के साथ 29.4 वेलोसिटी के साथ। सो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया है। सो द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप। सेकेंड हमें निकालना है द मैक्सिमम हाइट इट रीच। सो उसे वो कितनी हाइट तक गई। सो हमारे पास u भी है, v भी है, g भी गिवन है, हर एक चीज़ गिवन है, तो वी कैन यूज एनी का फॉर्मूला। सो वी कैन यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। So s is equal to u value given 29.4, t is given 3, because g is minus, that's why I write here minus 9.8 and 3 square. So when we solve it, then 4.1 meter will come. So it is the s value.
So it is A part answer, it is B part answer. Next, C is its position after 4 seconds. So now we have to find out the position after 4 seconds. So as we know that ball attain the maximum height after 3 सेकेंड. सो जो उसकी मैक्सिमम हाइट हुई थी हमारी बॉल की वो कितने के बाद हुई थी? 3 सेकेंड के बाद. आफ्टर अटेनिंग दिस हाइट इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड. सो 3 सेकेंड तक तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई थी, उसके बाद उसने कहाँ पर स्टार्ट कर दिया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना. सो वहाँ के केस में जब हमारी अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं ये वाली तो मेरे पास है ही है. अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो जब भी यहाँ पर अगर कोई स्टोन होगा सो मैं जैसे उसको फॉल करूँगी तो यहाँ पर वो रेस्ट में है. सो अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर जो यू की वैल्यू अब इनिशियल ये होगी हमारी, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0 मीटर पर सेकेंड. सो इन दिस केस initial velocity that is u is equal to 0 meter per second. So position of the ball after 4 seconds of throwing is given by the distance traveled by it during its downward journey. कि उसने डाउनवर्ड जर्नी में कैसे, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. सो अब S इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब यहाँ तक जो हमारा डाउनवर्ड जर्नी में अब यहाँ पर टाइम कितना लिया है? टोटल उसने हमें 4 सेकेंड गिवन है. सो 3 सेकेंड तो उसने अपवर्ड जर्नी में ले ली. सो टोटल ओनली 1 सेकेंड उसने कहाँ पर लिए? डाउनवर्ड जर्नी में. सो हमें जस्ट यहीं तक का इसका फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर टाइम जो हमें गिवन है वो 1 सेकेंड गिवन है. सो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सो यू की वैल्यू 0, टी 1, 1/2, जी वैल्यू पॉजिटिव एंड 1 स्क्वायर. सो यहाँ पर अब उसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1 सेकेंड के अंदर. सो यहाँ पर 0, 4.9 मीटर. सो यहाँ पर जो हमारे एस की वैल्यू आई है वो 1 सेकेंड के लिए वो कितनी आई है? 4.9 मीटर. अब जो 3 के लिए हमारी वैल्यू ये है और 4 के लिए हमारे पास ये आई है. सो टोटल 4 सेकेंड के अंदर अब कितना डिस्टेंस हमारा ट्रैवल हुआ है? सो नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड? सो 4 सेकेंड के लिए पोजीशंस क्या होगी इस केस में? सो 3 सेकेंड में तो हमने ये डिस्टेंस कवर किया और 1 में ये वाला डिस्टेंस कवर किया. सो जितना हमने, अगर हम टोटल डिस्टेंस के अंदर से अगर हम ये वाला डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारी ये पोजीशंस आ जाती है कि जो हमारी बॉल थी वो कितने डिस्टेंस पर थी. सो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज़ टोटल? 3 सेकेंड के अंदर जो टोटल था वो ये था माइनस 1 सेकेंड 4.9 मीटर. सो 39.2 मीटर इज़ द आंसर. ओके स्टूडेंट, योर एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड नाउ. बिकॉज जो भी आगे क्वेश्चंस है वो आपके प्रेशर और थ्रस्ट से रिलेटेड है. सो वो हमें नहीं करने, जस्ट हमें ग्रेविटेशन वाला पार्ट ही करना है. सो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है.